कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो शुरू होने से पहले ही बड़ी कोशिश करके इल्जामात लगा के बहतान लगा के मशकूक बना दी जाती हैं। लोग उन पर यकीन नहीं करते बल्कि उनके खत्म होने का इंतजार करते हैं। मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में हमारे पसंदीदा खेल क्रिकेट की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक वक्त आया, मैदान खाली थे, सन्नाटे थे, हर कुर्सी को खामोशी ने घेर रखा था और हमारे दुश्मन ये समझ रहे थे कि शायद ये रोशनियां कभी भी वापस रोशन नहीं होंगी। मगर कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो हालात के मोहताज नहीं होते। वाह वाह वाह। हम इंतजार करने वालों में से नहीं हैं, आगाज करने वालों में से। हमने इंतजार नहीं किया, आगाज किया। और वो मैदान जो सुनसान थे आहिस्ता आहिस्ता फिर से रोशन और आबाद होने लगे। वाह 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 वाह। वही शोर, वही जज्बा, वही दीवानगी वापस आने लगी। पूरी दुनिया देख रही थी। कुछ लोग हैरान थे, कुछ परेशान थे, कुछ हक्के बक्के थे और कुछ तो, जी आपकी बात कर रहा हूं, आपको तो यकीन नहीं आ रहा होगा ना कि ये सब मुमकिन कैसे हो गया। और आज ये कहानी खत्म नहीं हुई। हर मैच के साथ, हर शॉट के साथ, हर गेंद के साथ पीएसएल में मजबूत हो रही है पाकिस्तान। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुश आम Come on, शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहां से ले जाया जाए। आहा आहा। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿਰਾਇਆ ਫੜਨਾ ਏ ਜੇ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮੈਚ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁਣ ਜੀ ਤੇ ਚੌਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੁੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਢੇਕਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨ ਦੇ। ਪੀਐਸਐਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਲਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਖੇਲਣਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਸਖਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਚੌਕੇ ਛਿੱਕੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਹਨੀ ਭਾਈ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਭਾਜੀ। ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦਿਓ, ਕੀ ਬੋਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੇਂਦ ਆਇਆ। क्या हुआ? ਕੀ ਹੁਆ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਹੈ? क्या हुआ? ਮੱਛਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਧਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਧਰ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਣਾ ਹਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਹਨੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਟੀਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਰਖਾਏ ਨੇ। ਓਏ ਓਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕੀ ਬਾਤ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਵੇਂ? 8000 ਰੁਪਇਆ ਉੱਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਵੇਂ? ਇੰਜ ਗੇਂਦ ਫੜ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ओए होए
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਓਵਰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ 6 ਓਵਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੈਚੂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਟਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੈਚੂ ਚਾਦਰਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ हाँ बड़े खूबसूरत आदमी ने अकरम आए मां सदके जाए। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਮਾਸੀ ਇਹ ਤੇ 18 ਖਾਵਣ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਬੈਠੀ। ਯਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। खाला जी तुसी टेंशन च लग रहे हो, ਤੁਹਾਡੀ शेप दस रही है। ਖਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਮੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਕੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਸਾਡਾ ਟੀਵੀ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਟੀਵੀ, ਆਮ ਟੀਵੀ ਤੇ 200 ਸਕੋਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਘਰ 100 ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਟੀਵੀ ਤੇ 3 ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਓਵਰ ਹੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੇ ਰਨ ਆਊਟ ਪਤਾ ਕੀ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਦੌੜੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਟੀਵੀ ਏ, ओए होए ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ 9 ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਂਗਲ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਟੀਵੀ 'ਚ ਉਹਨੇ ਔੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੱਖੇ 'ਚ ਉਂਗਲ ਵੱਜੀ ਉਹਦੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਟੀਵੀ। ਉਹ ਮੈਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਪਾਇਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਖਾਮਦ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਾ, ਖਾਲੂ ਕਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। जोरदार तालियां। दुनिया न्यूज जिस भी फरीक के साथ कोई पार्टनरशिप करता है तो उसके हाथ को ऐसे थामता है कि उसको डोलने ना दे। बिल्कुल। दुनिया न्यूज के लिए जोरदार तालियां। दुनिया न्यूज किसी कॉज, किसी इशू जो मुल्क की तरक्की के साथ मुंसलिक हो, उसमें आगे आगे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। दुनिया न्यूज इज ऑफिशियल मीडिया पार्टनर ऑफ मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान के ओनर मिस्टर गौहर शाह इज हियर, प्लीज कम ऑन। How's that? अरे क्या बात है सर, आप तो हीरो टाइप से लड़के हैं। आप तो मुझे थोड़े थोड़े इंग्लिश फिल्मों के हीरो लग रहे हैं सर। आप तो माशाल्लाह बड़े हैंडसम, स्मार्ट, टॉल और काम भी आप लंबे लंबे और बड़े बड़े कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज प्लीज हैव अ सीट। सर, दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से और आपके एक बहुत बड़े फैसले की तरफ से, आपकी उस काविश की तरफ से, उस कोशिश की तरफ से, उस नेक नियति की तरफ से, जिसकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट को एक खूबसूरत सहारा मिला। और पाकिस्तानी क्रिकेट के तमाम शायकीन, तमाम क्रिकेट लवर्स की तरफ से वेलकम टू मजाक। क्या बात। गौहर भाई, वेलकम टू मुज़ाकरात। और माशाल्लाह क्या खूबसूरत और क्या हसीन आदमी हैं जी। इनकी खूबसूरती के लिए एक बार तालियां जी। क्या बात, माशाल्लाह। और आपकी मेहनत और आपकी हिम्मत माशाल्लाह, उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको एक शेर डेडिकेट करूंगा, अगर आप इजाज़त दे तो। जी जरूर। कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है।
वाह 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 की क्या की इन्हें मैंने समझ लगे मैं तेन भी दसना। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है? और देखो मेरे साथ चादर वाला खोता है। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या क्या होता है? हाँ। मेरे सेंटर में एक रंगीन तोता है। वाह वाह वाह। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है? वो बंदा लबन रहा जिन्हें अवेड़ा तोता है। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है? ये मेरा छोटा पोता है। टूटी को ला के ले गया, वैसे ये लोटा है। लोटा है। यार बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा, अभी छोटा है। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है? डूंगे पानी छाल मारेंगे, जो आएगा वो गोता है। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है? मैंने सुना है ये साल बाद मुंह तोता है। यार बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है? बाहर चौधरी बन के फिरता है, हालांकि इसका कोठा चोता है। कोठा चौथा। वाह 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 वाह। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है? कैसा लग रहा है सर आपको ये सब कुछ देखकर? मैं बस यही होप कर रहा हूँ कि उधर ही एक दूसरे को ही कहते रहें हजारों ख्वाहिशें कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, जरूरी नहीं कि हर ख्वाहिश पूरी निकले। लेकिन इसके बाद ये जरूर है मैं कभी शेर नहीं मैं किसी को बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है? छात इसकी भी चोती है, ये उसमें उंगली फंसा के सोता है। मेरी छत है, मैं जो मर्जी करूं, तू क्यों रोता? यार यो यार, जलजला 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 है, जलजला, उठ जा, आजा आजा, अब बाहर आ जा। नहीं भाई क्या हो गया, मजाक कर रहा हूं। अरे यार आप तो बड़े सादे आदमी हैं। मैं मान गया जी। अरे यार तालियां यार सादगी के लिए, भाई के लिए यार क्या। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੈਂ ਟੀਮ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਅੱਜ ਦਲਦਲਾ ਆ ਗਿਆ। पायन ਤੁਹਾਡਾ ਝਾਕਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੋਰ ਖਰੀਦੋ। पहले एक संभालना। हाँ, नहीं सर वो तो संभाली हुई आपने, और क्या खूबसूरत टीम जमा की आपने। ऐसी टीम खरीदने के लिए, ऐसी टीम को बुनने के लिए, ऐसी टीम को तामीर करने के लिए बड़ा हौसला, बड़ा जिगरा, बड़ा दिल और मुआवजा चाहिए। क्या बात, ऐसा ही है। और आपने ये साबित किया इतनी छोटी सी उम्र में। छोटी उम्र यानी कि वो अंग्रेजी की क्या कहावत है कि एज इज जस्ट अ नंबर। आपने साबित कर दिया कि उम्र चाहे छोटी हो, अगर इंसान का गोल, सोच और उसका ताकुब मंजिल की जानिब बड़ा हो तो वो बड़ा काम कर सकता है। क्या बात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा से सर। क्या बात। और इसी पे मेरा शेर है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है? वाह, जमी बंजर हो तो बरसात से क्या होता है? बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है? जमी बंजर हो तो बरसात से क्या होता है? और अमल ज़रूरी है तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो सर। अरे प्लीज मुबारक होवे, ਕੀ ਹੋਇਆ? गुल्ली डंडे की ट्रॉफी भी आ गई। जियो शेरिया। हमारी टीम में भी एक जगह रहती है। क्या एक प्लेयर हम ऐड कर सकते हैं स्क्वाड में, किसकी जगह खाली है? एक प्लेयर की। तो अगर आप लोग कोई जानते हैं जो अच्छा प्लेयर हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। पैसे कितने? 60 लाख मिलेंगे एक सीजन। 8 लाख। मैं भी खेलਦਾ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਮੈਂ ਨਾ ਅਗਲਾ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣਾ ਭਾਜੀ। पहले क्यों नहीं बताया? ਅਸਾਂ ਵੀ ਕੁਛ
फास्ट बॉलर सर, फास्ट। गौर भाई इन्होंने एक्सरसाइज करने दो, सानू ला जाओ। सर कौन बताएं, हुक्म करें सर, क्या किसको गेंद करानी है? अभी देखें 2-3 मैचेस गुजर जाएं, फिर हम दोबारा देखेंगे कि स्क्वाड को आगे पीछे कैसे करना है। सर उन्हीं देर तक पैसे तो दो ना। क्या आप एक काम करें ना, आप एक काम करें, आप हम कितने हैं? 1 2 3 4 5 5.5 6 पूरा है तो 10 लाख हमें देना अभी आप हाँ एडवांस एडवांस। तो हम फिर अब हम हमें कबूल है, आप किसी को भी खिला लीजिएगा। सर अभी बुक कर लें, बाद में हमारे पास बहुत टाइम। ऐसा करते हैं, कल पीटर सिडल को भी बुला लेते हैं नेट्स में, आप लोग आ जाना। हेलमेट पीटरसन ਸੀ ਕੋ वो पीटर सिडल नहीं ऑस्ट्रेलिया का ਤੇ ਉਹਦੇ 60 ਲੱਗ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨੇ ਬਾਉਂਸਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। सर 50-60 रुपये दे गया खिलाड़ी ते लै जाओ साडा उन्नी देर तक। नहीं थे, अगर ये बैटिंग कर रहा है तो लेग बिफोर विकेट किधर तक होगी? वाह जी वाह। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। वाह वाह। अच्छा सर, कितनी ताकत है पैसे में? पैसे में इतनी ताकत है कि जितनी मर्जी मजदूरी कर लो, पैसा फिर भी पैसे से ज्यादा पैसा बनाएगा। वाह 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 वाह, ये भी जवाब कारोबारी वाला, ये भी पैसा बनाने वाला जवाब। मैं पैसे की ताकत एज ए ह्यूमन पूछ रहा हूं, एज ए जमाना, एज ए माशरा, एज ए इंसानियत, पैसे में कितनी ताकत है सर? क्योंकि आप वो लड़के हैं जिसने जीरो से स्टार्ट किया, और सबसे बड़ी बात ये कि जो कुछ बनाया वो अपने दम पे बनाया। क्या बात, वाह वाह। क्या बात। जितना भी पैसा है वो खुद कमाया, ऐसा नहीं कि चाचा जी, ताया जी, बाबा जी, जो कि बुरी बात नहीं है, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप सेल्फ मेड होते हैं तो आपने जिंदगी के तमाम नशेब व फराज को बड़ी करीब से देखा होता है, जिंदगी के मामलात के साथ बड़ी कुर्बत रही होती है आपकी। तो वो वक्त भी देखा जब इतना पैसा नहीं था, और अब वो वक्त भी देख रहे हैं जब इतना पैसा है कि बैठ के बोली लगा रहे हैं। पैसे में कितनी ताकत है? पैसे में बहुत ताकत है कि एक तो इंसान के जो हैबिट्स हैं और जो माइंडसेट है वो भी बदल देती है। आप देखें कि आपस में भाई भाई नहीं रहते पैसे के पीछे, दोस्त नहीं रहता, जिंदगी भर की दुश्मनियां हो जाती हैं। तो पैसे में बहुत ताकत है, और हुकूमतें आपस में जो है वो जंग की तरफ चली जाती हैं। हो, बड़ी आपने खूबसूरत बात कही, बात आपकी मुकम्मल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपकी आंखों में कुछ देखा। सुनने में आता था, आता है, खुदा करे आता ना रहे, कि कामयाबी और पैसा जब इंसान के पास आता है तो उसकी कोई ना कोई कीमत होती है, उससे उसकी कोई ना कोई खुशी छिनती है। ऐसे ही है आपसे कुछ छिना? सर ऐसे कि पहली दफ़ा जब ज़िंदगी में पैसे बनाए तो वो संभाले नहीं गए, वो लग गए, वो उड़ा लिए। अच्छा, कहाँ उड़ाए? बस ऐसी चीज़ों पे, दुनियावी चीज़ों पे, मसलन? गाड़ियों पे और दोस्तों पे और ट्रैवलिंग पे। कितना पैसा उड़ाया? करोड़ों से भी ज़्यादा। करोड़ों से ज्यादा? जी, अरब? तकरीबन। दोस्तों पे लगा दिया? बस उस टाइम जहन में था कि क्योंकि 27-28 साल का था, तो मैंने कहा कि जो दोस्त अभी कारोबार में नहीं आए थे, नौकरियां कर रहे थे, तो मेरा होता था कि जो भी मैंने करना है तो सबने साथ करना है। तो वो फिर कहते थे कि अभी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, या अभी हमारे पास वो नहीं है एबिलिटी। तो फिर मैं कहता था सारे आ जाओ, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है। तो इस तरह वो करते करते वो फिर आदत भी पड़ जाती है लोगों को शाह खर्ची की। और मेरा भी एक पैसा खर्चना ऐसे कि आपका हाथ सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है, उसको एक दफ़ा वो जाना शुरू हो जाए उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो जिन तमाम दोस्तों के ऊपर आपने खर्च किया, जी, जब वो अरब रुपया खत्म हो गया, उनमें से कितने लोग वापस लौटे?
चंद, कितने? 2-3, और थे कितने? 30, 40, 50। और उन 2-3 ने भी मदद की या सिर्फ हाल पूछा? उन्होंने मदद ज़रूर की। जब बुरा टाइम आया तो उन्होंने सब्र भी इख्तियार किया और सपोर्ट भी की। और उस टाइम से जो सीखने को मिला वो उस आइसोलेशन में, उसकी वजह से फिर जो है ये कम बैक हो सका। 27-28 साल का लड़का, उसके पास इतना ज्यादा पैसा हो, गाड़ियों का शौक हो, अच्छा पहनने का शौक हो, दोस्तों पे खर्च करने का शौक हो, तो बहुत से चांसेस होते हैं कि उस दौर में आपको मोहब्बत भी हो जाए। अब सर मंगनी होगी, ये क्यों मार पिटवाएंगे? नहीं, वो तो ये तब की बात करें। भाभी हमारी बहन बहुत अच्छी है, कुछ नहीं कहेंगी। नहीं, जाहिर है कि जब आप सक्सेसफुल हों, एक यंग एज में करिश्मा हो, तो लोग अटैच करते हैं आपको अपने आप से। और फिर जब आपके इर्द गिर्द इतनी खूबसूरत औरतें हों तो फिर जाहिर है कि मोहब्बत तो हो ही जाती है। तो जब पैसा खत्म हुआ, जिससे मोहब्बत हुई या जिसने आपसे कहा कि आपसे उसको बड़ी मोहब्बत है, क्या वो रुकी? सर टाइम के साथ, क्योंकि जब हाँ या ना? मैं इंसान खुद जो है ना, जब पैसे आके जब जाता है तो उसका खुद का जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हो जाती वो रुकी या नहीं? है। नहीं, कहीं मत जाइएगा, यही रहिएगा, क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक रात। वेलकम बैक टू मजाक रात। इस गुफ्तगू को वाइंड अप करते हैं। वो लोग जो नहीं रहे, चले गए बुरे वक्त में, उनसे अगर कुछ कहना चाहते हैं तो वो सामने कैमरा है। नहीं, देखें, जो जिसके नसीब में होता है वो अल्लाह ताला देता है। तो बस आप अपने अच्छे टाइम का इंतज़ार करें और तवक्कल रखें, तो अल्लाह ताला आपके सोच से भी ज़्यादा आपको देगा। वो तो जो नहीं रहे, जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ नहीं रहे, उनको कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना कि जो मेरा रिस्क अल्लाह ताला ने या जो मेरे लिए इज़्ज़त लिखी थी वो तो मिलनी है। वो आपको मिल गई, तो वो रहे ना रहे तो उसमें आपके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात। हर वफा बड़ी मुश्किल ਨਾਲ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਸਨ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕੇ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਮੇਕਅਪ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। यार नहीं। ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੇਰਾ ਵੀ ਬੈਟਸਮੈਨ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ। अच्छा ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਬਾਉਂਸਰ ਮਾਰਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਕਟ ਉੱਡ ਗਈ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾਈਵ ਮੈਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। बॉलर आया, उन्हें कप्तान ने कहा इन्हू यॉर्कर मार, तो उन्हें गेंद की थी मुंह ते लग गई। ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਸੀ ਇਹ। ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਬੱਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। क्यों? ਉਹ ਵਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਜੋ ਬਲਬ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇਰਾ 25 ਸਕੋਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ 50 ਲਿਖੋ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਅੰਪਾਇਰ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ LBW ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤੇ LBW ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਟਰੇ 'ਚ ਤੇ ਬਾਉਂਡਰੀ 'ਚ ਦੌੜਦੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਖਾਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬ੍ਰੇਕ 'ਚ ਤੌਲੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਕਰਮ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। गोहर many congratulations। मुल्तान सुल्तान्स की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है अभी तक। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? नहीं, इंशाल्लाह जैसी हमारी टीम का कॉम्बिनेशन है और जो हमारे फॉरेन प्लेयर्स भी हैं, पीटर सिडल बहुत अच्छे बॉलर हैं, टिम पेन जो हमारे कोच हैं, तो और साहिबजादा फरहान, मोहम्मद वसीम जूनियर और काफ़ी मोहम्मद नवाज़, पाकिस्तान के जो सब जानते भी हैं प्लेयर्स, तो इन सबको
जेल होके जो खेल रहे हैं और जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं सब शायकीन के लिए भी एक एंटरटेनिंग ब्रांड है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी टीम सबसे तगड़ी है, लेकिन क्रिकेट है कोई पता नहीं होता। इंशाल्लाह हम चैंपियन होंगे इस साल। इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्या बात। सबसे फेवरेट प्लेयर कौन है टीम में? नहीं, कोई फेक फेवरेट नहीं है, सब 21 के 21 एक किसी रोल की वजह से उनको पिक किया गया है और वो सब अपना रोल जो है सबसे बेहतरीन रोल किस प्लेयर का है? कप्तान का सर, कप्तान हमारे एश्टन टर्नर है और वो आपके फेवरेट है? आई थिंक कि सबसे ज़्यादा पूरी टीम पे जो इम्पैक्ट है वो उनका है, क्योंकि वो जिस तरह की वो सोच रखते हैं, जिस तरह को वो टीम को लेके चलते हैं और जो उनकी क्रिकेटिंग ब्रेन है, मैंने बहुत कम लोगों को इतना देखा है समझदार। अच्छा, और पाकिस्तानी प्लेयर्स में से आपका जो आपको लगता है कि आपका सबसे ज़बरदस्त एसेट है? इस वक्त साहिबजादा फरहान होंगे, वो वर्ल्ड कप में भी जो T20 का भी हुआ जब था। वर्ल्ड कप हो रहा था, आप उनकी परफॉर्मेंस देख रहे थे तो आप खुश हो रहे थे कि मैंने सही जगह पैसा लगाया? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उनका बल्कि पिछले 18 महीनों से बड़ा अच्छा फॉर्म चला हुआ है। मेरे ख्याल से उनकी 9 सेंचुरीज़ हैं पिछले एक साल में, और किसी और प्लेयर की इतनी ज़्यादा सेंचुरीज़ नहीं है। तो वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं और गेम को फिनिश भी कर सकते हैं, तो हमें और अच्छे स्ट्राइक रेट पे भी खेलते हैं। तो इस तरह के प्लेयर्स की हमें ज़रूरत थी और उन्होंने एक पाकिस्तान के लिए भी एक ओपनिंग स्लॉट जो वीक था वो भी कवर किया, और खैर हमारे लिए तो स्टीव स्मिथ के साथ बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप है। बिडिंग करते हुए सबसे ज़्यादा खुशी किस प्लेयर को परचेज करके हुई और सबसे ज़्यादा अफसोस किस प्लेयर को खो कर हुआ? उस टाइम पे जो खोने का था वो हारिस रऊफ का था। आप चाहते थे उन्हें? हारिस रऊफ एक अच्छे बॉलर हैं और आई थिंक कि डोमेस्टिक लेवल पे जो जिस स्पीड पे वो बॉल करते हैं तो एक बड़ी एक एडवांटेज होता है। तो क्यों रह गए वो? सर वो लाहौर कलंदर्स के क्योंकि प्लेयर्स थे बड़े अरसे से, तो उन्होंने ये माइंड बनाया था हमने किसी भी कीमत पे उन्हें खरीदना है। तो आपने ये माइंड नहीं बनाया हुआ था? मैं थोड़ी कैलकुलेशन करके आया था कि एक थ्रेशोल्ड है, उस जो वर्थ है उससे इतना ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि फिर बाकी प्लेयर्स की जो कैलकुलेशन है वो ख़राब होती है। दिल टूटा जब वो गए? क्योंकि हर 10 सेकंड बाद एक नया प्लेयर आ रहा था, तो टूटने का टाइम ही नहीं हुआ वो। लेकिन जब वापसी पे गाड़ी चला रहे थे तब? नहीं, दिल जब टूटा कि लिफ्ट में अभी टूर्नामेंट शुरू होने के बाद जब हारिस रऊफ मुझे लिफ्ट में मिला, तो उनको भी पता था कि मैंने कोशिश की और मुझे भी पता था मैंने कोशिश की। तो उस टाइम पे वो जब आंखें चार हुई, इंटरेक्शन हुआ, तो तब लगा कि यार शायद थोड़ी सी और हिम्मत कर लेता। तो अच्छा, आपको कहीं ना कहीं तिश्नगी बाकी है, कहीं ना कहीं पछतावा है हारिस रऊफ को ना लेने का? देखिए, अब टीम 10 साल के लिए ली है तो कुछ भी हो सकता है अगले साल। नहीं, अभी तो इसी साल की बात हो रही है, इसी मोमेंट की बात हो रही है। लेट्स लिव इन अ मोमेंट। दैट्स राइट। तो है पछतावा है कि बढ़ा देना चाहिए था थोड़ा। देखिए, पाकिस्तान में उस लेवल पे बॉलर्स बहुत कम हैं, तो वो एक किसी भी टीम में हो उनको बड़ा फ़ायदा होगा। सबसे ज़्यादा खुशी किस खिलाड़ी को? सर, सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी अरफात मिन्हास को लेके। अभी पाकिस्तान में उसको इतने ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन वो एक अंडर 19 का प्रोडक्ट है। और उसका भाई भी समीर मिन्हास, जिसने इंडिया के खिलाफ अंडर 19 एशिया कप में 170 किया था। बिल्कुल। तो ये दोनों भाई जो हैं मुल्तान से ही बिलोंग करते हैं, तो एक तो लोकल प्लेयर्स हैं और दूसरा दोनों जो हैं पाकिस्तान के लिए अगले 15 साल सर्व करने के लिए तैयार है, और उनका जो टैलेंट है और जो उनकी सीलिंग है वो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट है इस वक्त। पैसा कमाया कैसे आप? पैसे ऐसे कमाया वालदा की दुआ से। अब वो तो है, वो तो बड़ी अच्छी खूबसूरत बात है, उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। कैसे इतना पैसा कैसे आया कि आपने टीम बना ली? जब 2019 में मेरा क्रिकेट करियर ख़त्म हुआ, मुझे एक अच्छा, आप क्रिकेट खेलते रहे? बिल्कुल ऐसे ही है। मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेली, लाहौर से रीजन से खेली, अंडर 19 खेली, फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली पाकिस्तान में नेशनल बैंक की तरफ से। क्या बात है, तालियां यार, ये मतलब देयर इज अ बैकग्राउंड। तो फिर इंग्लैंड में क्रिकेट स्कॉलरशिप पे गया, वहाँ पे उनकी जहाँ पे इंग्लैंड की नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, तो वहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा था। तो उस दौरान एक कमर की इंजरी की वजह से मुझे क्रिकेट छोड़नी पड़ी, जो उस टाइम जिसका बड़ा अफसोस था, क्योंकि 3-4 साल की उम्र। क्या इंजरी क्यों हुई सर आपको? गिर गया था सर। सुबह की ट्रेनिंग थी, जिम जाना होता था, हमें 6 बजे बुलाते थे, तो वो सर्दियों का मौसम था और हाथ जैकेट में थे, तो
कई दफ़ा इंग्लैंड में ये होता है कि सर्दी की वजह से वो ओस जो होती है वो जम जाती है, बर्फ की तह बन जाती है। आधी नींद में था तो उस तरह देख नहीं रहा था, तो पैर रखा तो नीचे से जब बर्फ़ फिसली, फ्रॉस्ट जिसको कहते हैं, तो बर्फ पे आप फिसल के पिच पे गिरने की बजाय नोटों में गिर गए। बिल्कुल ऐसे ही है। वाह भाजी वो बर्फ सानू भी विखा दोगे। अच्छा, सवाल वहीं का वहीं कि ये पैसा कैसे कमाया? तो उसके बाद फिर जब क्रिकेट करियर को खैराबाद का, तो मेरे क्योंकि साथ एजुकेशन मैंने नहीं छोड़ी हुई थी, तो एक यही कंडीशन थी कि पढ़ाई नहीं छोड़नी अगर क्रिकेट खेलनी है। तो जो एजुकेशन की वजह से फिर मुझे नौकरी मिली एक बड़ी इंस्टीट्यूशन में, तो वहाँ पे मैंने 5 साल काम किया, सीखा, समझा, और उसी दौरान मैंने देखा कि सारी ज़िंदगी तो किसी और के लिए नौकरी नहीं करनी, क्योंकि फिर आप वो कहते हैं ना रैट रेस, इंग्लिश का एक फ्रेज़ है, आप सारी ज़िंदगी फिर उसी रैट रेस में ही फंसे रहते हो। तो मुझे था कि अगर इससे निकलना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैं हेल्थ केयर में नौकरी कर रहा था, तो उस तरह मेरे बायोटेक से मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। बायोटेक्नोलॉजी जो है आपकी जो बीमारियां हैं उनको ट्रीटमेंट करने की जो टेक्नोलॉजी होती है, जो नई मेडिसिन बनती हैं कैंसर से लेके न्यूरो साइंस तक, तो वो एक शोबा है। तो उसमें मैंने काफ़ी रिसर्च की, समझा, और तो जब उधर इन्वेस्ट करना शुरू किया तो मैंने देखा कि एक बहुत अपॉर्चुनिटी है, और इतने ज़्यादा लोग उस शोबे की तरफ नहीं जाते क्योंकि उन्हें होता है कि यार हमने बायोलॉजी नहीं पढ़ी, हम डॉक्टर नहीं है, शायद हम इस शोबे में नहीं आ सकते। तो वो जब मैंने अपॉर्चुनिटी देखी और उसमें फिर अच्छी तरह उसको समझ पाया, तो उधर से ही फिर ज़िंदगी जो है वो एकदम चेंज होगी, और जो सारी मेरी इनकम है वो उसी शोबे में से एक फ़ंड के थ्रू और अपने पैसे इन्वेस्ट करके, जो वो कंपनीज़ और ड्रग्स जब सक्सेसफुल हुए तो वो उनकी ग्रोथ के साथ साथ जो मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई, तो वो तो मैंने सही कहा कि यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन? विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह ताला जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। सर कभी ऐसा हुआ कि आप बैठे हैं तो खिलाड़ी आउट हुआ, आपने पैड कर लिए? फिलहाल तो नहीं, लेकिन दिल बड़ा करता है, क्योंकि एक खिलाड़ी के लिए ग्राउंड में जाना और खेलना पाना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा लगता है कि इतने पैसे लगा के आप खुद भी खेलने नहीं जा सकते। ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਆ। नहीं, इतने पैसे लाए ने इसी वजह से तो नहीं जाना। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਇਕੱਠੇ ਖਰੀਦਦਾ, ਵਿੱਚ 2-3 ਖਰਾਬ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ चिप्स बना ली होगी, चलो। हो जाते हैं, आलू खराब हो जाते हैं, लेकिन फिर आप अगले दिन जाके दोबारा ले लेते हैं। तो अब एक दफा अरब रुपए के करीब पैसा गंवाने के बाद जब अब दोबारा माशाल्लाह से पैसा आया है, तो पैसे की कदर हुई है? अब पैसा संभालते हैं या अब भी लगा देते हैं? अब शौक तो अभी भी है, लेकिन मदद करने का लोगों की, मदद भी करने का, और किसी के शो पे गए हो, सोस्ट को एवं 2-3 करोड़ रुपया दे दिया, ऐसा हुआ कभी? ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ऐसा हुआ या कब दिल करता है? क्योंकि आपने कहा कि जब आदत हो जाती है देने की तो फिर कभी का ऐसा दिल कर रहा है कि कहो इमरान अशरफ बड़ा शो करते हो, तुम ये लो 3 करोड़ रुपए? दिल तो मेरा करता है कि मेरे से कोई भी चीज़ मांगे मैं दे मैं सकूं। सर बेसिकली मैं एक एक्टर हूं इस मुल्क का, मैं खुलकर नहीं मांग सकता, आपको समझना होगा सर। सर कभी ऐसा हुआ हो कि आपने समझा कि यार इस टीम से तो इजी जीत जाएंगे, उन्होंने बहुत मारा है? होता है सर, क्रिकेट में होता है। कौन से मैच में हुआ जिस मैच में आपको लगा कि आए आज ते बहुत ही पहले है? वो हमारा लाहौर कलंदर्स के साथ मैच था, उसमें फ़खर ज़मान भी अनअवेलेबल थे, तो हमें लगा कि उनका मेन बैट्समैन नहीं होगा तो हम उनकी बैटिंग को कंट्रोल कर लेंगे। उन्होंने 13 ओवर में 180 कर दिया। हाँ, 30 स्कोर से आपकी टीम पीछे रह गई। 20 रन 20 से। पे हमने भी last। खैर 13 ओवरों में 160 कर लिया, बड़ा स्कोर अच्छा किया सर। किया आपने, बहुत अच्छा कर दिया। लेकिन 180 को ज़्यादा ही तो रन। दिल टूटा उस दिन? दिल टूटा, मेरी सालगिरह भी थी, तो मेरा था कि मेरी टीम। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।
ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਨੂਰੀ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੱਲਾ ਗਲੇ 'ਚ ਫੇਰ ਲਓ। ਨੂਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੋ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਨੂਰੀ ਨੇ ਕੁਹਾੜੀ ਵੇਚ ਕੇ ਬੱਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆ? ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਏ? ओ नहीं, ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ओ मोतिया वालिया, मेरा नाम नूरी बौथम है। ਨੂਰੀ ਬੌਥਮ। वाह जी वाह। ਮੈਚ ਖੇਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैच ते अज इत्थे होणगे क्योंकि गेंद मेरी मर्जी दा पिया। ओए बड़ा बड़ा क्रिकेटर सा पर सिलेक्ट ही नहीं होया। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਧੋਤੀ ਬਣ ਕੇ ਖੇਡਣ ਚਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਂ ਆਇਆ ਆਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਓਨਰ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਆਏ। आए ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੌਹਰ ਭਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਨੰਬਰ ਲੱਭਿਆ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਨੰਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਫਤਰਾਨਾ ਤੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੌਰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪਲੇਅਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੰਗਣ ਨਾ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ 30-35 ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੰਗੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਏਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇ ਹਾਮਿਲ ਨਹੀਂ। ਆਟਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਲਤਾਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਚਰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤੇ 5-7 ਲੱਖ ਲਾਓਗੇ? गौहर भाई मेरे कुछ चांस दियो, मैं बड़ा वड्डा बैट्समैन। यकीन करो मैं छक्के ते छक्का भी मार देना। करो बेचारे दी मदद कर दियो ते बाकी जड़ा वो इन्हां दे मुंह वेख के तुहानू लग ही रहा होना। सुनिया तू अपने इलाके दा बड़ा वड्डा बॉलर है। हाँ जी। ओए दुश्मना, अज नूरी दी अख चक पा के कोई यारकर मार, ताकि नूरी अपने बल्ले दे नाल ओनू स्टेडियम तो पार। ਨੂਰੀ ਬਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਤੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਗੌਰ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਕਰਨੇ। ਓਏ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ 7 ਨਸਲਾਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 7 ਨਸਲਾਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਹਲੇ 1-2 ਨਸਲ ਹੋਰ ਸਹੀ ਬਹਿ ਤੂੰ। 7 ਨਸਲਾਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ। ਅੱਖ ਦੀ ਲਾਲੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ।
गौहर भाई, मैं बड़ा गरीब आदमी हाँ, मेरे 2 छोटे छोटे नूरी ही ने। फिर इन्ना बड़ा क्रिकेट का क्यों किस्सा छड़िया? मैनू बाहर किसने दसिया अंदर सिलेक्टर साहब आए ने टीम दे हेड था बंटू। देखो मैं चाहना इन्नी लंबी रकम पावे ना दियो, 5 किलो आटा 3 किलो घ्यो ते बिजली दा सारा कुछ छड्डो, 5 लीटर पेट्रोल। ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖੁੱਲੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। मैं फिर तुहाडे वालों ना ही समझा। ਨੂਰੀ 7 ਨਸਲਾਂ ਮਰਵਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਅੱਖ ਦੀ ਲਾਲੀ ਦੱਸਦੀ ਏ ਇਹਨੇ 8ਵੀਂ ਵੀ ਮਰਵਾਉਣੀ। ਨੂਰੀ ਭਾਈ ਸੁਬह ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਜਾਓ, ਟਰਾਇਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ आ जावा ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ 60 ਲੱਖ ਤੁਹਾਡੇ। समझो मैं इन पास हो ते 7 लाख मेरे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਾਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, ਲਿਆਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। 7 ਲੱਖ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ ਪਹਿਲੇ। क्या बात। गौहर भाई, क्रिकेट की बातें हुई, उससे पहले एक मोहब्बत की भी बात हुई, तो मेरा एक सवाल है जो मैं हर मेहमान से पूछता हूँ। तो एक मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि यकतरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? वन साइडेड लव होती है, बिल्कुल होती है, और इंसान की कैफियत है कि उसको वो चीज़ चाहिए जो उसको मिल नहीं सकती। तो अब वो किसी और से हो या किसी चीज़ से हो, किसी तरह की भी हो सकती है, लेकिन ये है कि वो इस तरह की ना हो कि आपको बर्बाद कर दे। ऐसा है कुछ के इतना पैसा होने के बाद भी कुछ ना मिल सका हो? ये तो वही इंसान की कैफियत है, जैसे जो आपके पास चीज़ नहीं होती वो आपको वही चाहिए होती है। और क्या चाहिए आपको? इस वक्त तो जब मैं ग्राउंड में जाता हूँ मेरा भी दिल करता है कि काश मैं अभी भी खेल सकता होता। हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, बिल्कुल है। किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता, लेकिन आपको आसमां मिला। ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਮੁਹੱਬਤ ਇੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਗੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। क्या बात। गौहर टीम इंशाल्लाह फाइनल्स में जाएगी, तो फाइनल किस टीम के साथ खेलना चाहेंगे? हम लाहौर कलंदर्स के साथ खेलना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने हमें हराया है, वो वाहिद टीम है जिन्होंने अभी तक हमें हराया है, तो हम उनके खिलाफ ही उनको हराना चाहेंगे लाहौर में फाइनल। दुनिया न्यूज़ पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो, देखते रहिए मजाक रात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम? अब्दुर्रहमान नासिर। क्या कहना चाहते हैं? मेहदी हसन साहब की गज़ल सुनाना चाहूँगा। सुनाए। बुलबुल ने गुल से, गुल ने बहारों से कह दिया, एक चौदहवीं के चांद ने तारों से कह दिया, दुनिया किसी के प्यार में, दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, एक दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार। तुम
बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्ने जहान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो, जाने वफा हो और मोहब्बत की शान हो। जलवे तुम्हारे हुस्न के तारों से कम नहीं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, आपकी नज़र एक शेयर करना चाहूँगा। नाम? मेरा नाम मोहम्मद नवाज़ है। मैं कसूर शहर से आया हूँ, बाबा बुल्ले शाह की नगरी से। वाह, क्या करते हैं? शॉप है मेरी स्पेयर पार्ट की। स्पेयर पार्ट की? जी सर। अरे मिल जाएगा मेरा। किसका शेर सुनाना चाहते हैं? सर ये एडवाइस ही है। इश्क विश्क का मामला है कोई? हो सकता है, लेकिन अब नहीं। जब था तब क्या हुआ था? गुजरे वक्त को याद नहीं करना, जो बुरा वक्त हो ना उसको याद नहीं करना चाहिए। क्या बुरा था उसमें? बस जो नहीं मिला वो बुरा ही है। जो नहीं मिला उसने धोखा दिया? धोखा अपनों ने किया, उसने तो नहीं किया। अपनों ने क्या धोखा किया? बस मिलने नहीं दिया। लेकिन जो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, खुश हूँ अब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक ने मुझे 3 बेटे दिए हैं और 1 बेटी दी है। बहुत शुक्र है अल्लाह का। क्या सुनाना चाहेंगे? एक एडवाइस ही है जी। ज़िंदगी में किसी के लिए रोना मत, ज़िंदगी में किसी के लिए रोना मत, क्योंकि वो तुम्हारे काबिल नहीं होगा। मेरा अशरफ जो इस काबिल होगा वो तुम्हें कभी रोने नहीं देगा। थैंक यू वेरी मच। ओए अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा प्यारा शो है। आपको देखने की एक यानी कि दिल में थी, आज आपको फेस टू फेस देखनी क्या है। थी? एक हसरत सी होती है जो। क्या कहना चाहते हैं? आपको एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगा मैं। कर दो। शेर है कि आंखों आंखों में इशारे हो गए, आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे और आप हमारे हो गए। कुछ ना देखा था जब तक ना देखा आपको, वाह। कुछ ना देखा था जब तक ना देखा आपको, एक नजर क्या देखा के सब नजारे हो। थैंक यू मेरी जान, जीते रहो, बहुत प्यारे हो आप। थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मेरा उन सर से एक क्वेश्चन है। सर अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन जी। व्हाट्स योर फेवरेट मेमोरी विद मुल्तान सुल्तान? जो हमारी पहली जीत थी वही एक मेरी फेवरेट अब तक मेमोरी है कि जिस तरह हम सारे एज न्यू ओनरशिप, नई टीम, नई कोचिंग स्टाफ सिर्फ 4-5 दिन इकट्ठे हुए थे और उस 4-5 दिन में ही हम जेल होके पहला मैच जीते, तो वो मेरी फेवरेट मेमोरी है। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कैसे हैं? क्या हो रहा है आजकल? बस अल्लाह का शुक्र है, कारोबार हो रहा है छोटा मोटा। क्या कहना चाहते हैं? मैं एक शेर सुनाना चाहूँ। शेर सुनाना चाहते हैं? शेर सुनाए। दीवारों में दर होता तो अच्छा था, काश अपना भी घर होता तो अच्छा था। उसका रंगी आंचल ओढ़ के सो जाते, और ऐसा अक्सर होता तो अच्छा था। बहुत शुक्रिया। जीते रहे सर, जीते रहे। क्या बात सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप और कामयाब हो और जीते रहें। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। आई होप कि आपको अच्छा लगा। बहुत मज़ा आया।